हाँ जी बेटा. So last set of word problems, as we have discussed it in the previous class, are based on the concept of appreciation and depreciation simultaneously. यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटनी चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है इट विल रिमेन द सेम. ये कंसेप्ट है अपने पास में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का. आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स दैट डे यस्टरडे ओनली. तो उसको अब कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, अब जेन्युइन क्वेश्चन लेते हैं. चलो, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं. Is given in NCERT also. So such a question is given in NCERT also. It says if the length of a rectangular park is reduced by 5 meters, if the length of a rectangular park is reduced by 5 meters and its breadth is increased by 3 meters and its breadth is increased by 3 meters, the area of the rectangular park is reduced by 9 meters squared. The area of the rectangular park is reduced by 9 meters squared. So this is the new length L minus 5 because the length is reduced by 5 meters. The breadth is increased by 3 meters. This is the new breadth. And the area, he says, is reduced by 9 meters square. Right? 9 square meters. So the area is reduced by 9. It does not become 9 meters square, but it is reduced by. So अगर area LB था पहले, तो अब क्या हो जाएगा? LB minus 9 meters square. Simple equation. देखो ना कितना आसान है. Length, नई length क्या हुई? L minus 5. नई breadth क्या हुई? B plus 3. ठीक है? I'm not using X and Y. I'm using L and B. How does it matter? Right? What does it matter? So now the new area, what is the new area? It is reduced by 9 meters square. So what was the previous area? It was LB. The previous area was LB, and now the new area is 9 meters square lesser than the previous one. जो पहले एरिया था उसमें 9 मीटर स्क्वायर कम कर देते हैं. एरिया में 9 मीटर स्क्वायर कम कर दिया अपन ने, है ना. अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो LB plus 3L minus 5B minus 15 is equal to LB minus 9. चेक कीजिए बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही है. हाँ है ना. देखिए ना, there are only two variables, one is L and the other one is B. लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ही है. ये भी अपनी कल बात थी कि अगर हमें एक बार लग रहा होगा कि x इंटू वाई होगा यहाँ पे तो L इंटू बी होगा यहाँ पे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी. तो ध्यान रखिएगा L और B, L इंटू बी या x इंटू वाई जो है वो आपस में वैसे ही रिड्यूस हो जाएंगे. तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल जाएगी. राइट. चलो दूसरी की बात करते हैं. He says when the length is increased by 3 meters, when the length is increased by 3 meters, समझ में आ गया. नई लेंथ 3 meters ज्यादा है. If the length is increased by 3 meters and the breadth is increased by 2 meters and the breadth is increased by 2 meters, it is increased by 2 meters. So length is also increased by 3 meters, the breadth is also increased by 2 meters. It says the area of the rectangular part increases by 67 meters square. So the area is increased by 67 meters square. The area is LB. Previously it was LB, length into breadth. Now it is LB into 67. Simple. Isn't it simple? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है. क्या कह रहा है वो? जो वो कह रहा है उसको फॉलो करते चलिए, बस सिंपल सी बात. Again we will open this bracket, so it will be LB plus 2L plus 3B plus 6 is equal to LB plus 67. LB से LB को आप रिड्यूस कर सकते हैं और आपके पास में एक और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ जाएगी. Now we know how to solve linear equation टू वेरिएबल्स. Yes or no? राइट. सिंपल है ना बेटा. आपको जैसा वो कहे वैसा करते हुए चले. मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज सोल्यूशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. वी नो वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर. दिस इज द लास्ट डे इन दिस चैप्टर. वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन हमें समझनी है, वो समझते हुए चलते हैं. चलो अगेन एक ऐसी डमी क्वेश्चन लेना, नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन. ओके, सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ.
If the length of a rectangular path is increased by 10 meters, if the length of a rectangular path is increased by 10 meters, so what will be the new length? L plus 10. जो भी लेंथ थी पहले थी उसमें 10 meters increase कर दिया. If the length of a rectangular path is increased by 10 meters and the breadth is decreased by 20 meters and the breadth is decreased by 20 meters, the area remains unchanged. The area remains same. The area remains same. That means LB. तो LB ही रहता है, ना वो कम होता है ना ज्यादा होता है. होता होगा, एक इक्वेशन है, तो सिचुएशन है ना. चलो. So if the length is increased by 10 meters, this is the new length. Breadth is decreased by 20 meters, this is the new breadth. And area remains the same. So area will remain LB. जो है वो LB ही रहेगा, ऐसा वो कह रहा है. सिंपल है, राइट? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन. आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो LB माइनस 12GL प्लस 10B माइनस 200 इज इक्वल टू LB. LB से LB को रिड्यूस कीजिए, खत्म कीजिए, इधर उधर ट्रांसपोज कुछ भी कर लीजिए. आप देखिए आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन जो अवेलेबल है, जो है माइनस 20L प्लस 10B इज इक्वल टू 200. इसमें 10 कॉमन है, क्या सॉल्व करना है, ये सब पुरानी बातें हैं, है ना. चलो ये क्वेश्चन पूरा एंड तक करके देखते हैं फिर, राइट? जो आपको मैं वॉकिंग वाला बता रहा था, जो रो वाला बता रहा था, हाउ रो एंड कॉलम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज सिटिंग अरेंजमेंट में, राइट? उसका एक क्वेश्चन पूरा एंड तक सॉल्व करते हैं. चलो कहानी ध्यान से सुनिएगा, वो क्या करना चाह रहा है. He says a man walked a certain distance at certain speed. A man walked a certain distance at certain speed. Had he walked half kilometer faster, had he walked half kilometer per hour faster, he would have taken 1 hour less. He would have taken 1 hour less. Understood the story? A man walked certain distance with certain speed. ठीक है, एक आदमी ने वॉकिंग करी, कुछ डिस्टेंस कुछ सर्टेन स्पीड से कर ली, ठीक है, होगा. He says if he had walked half a kilometer per hour faster, had he walked half a kilometer faster, he would have taken 1 hour less. अगर वो अपनी स्पीड, जिस भी स्पीड से वो पेस से चल रहा था, उस पेस से अगर वो हाफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता, जैसे अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है मान लीजिए, राइट, तो वो 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो ही वुड हैव टेकन 1 hour लेस. ठीक है, आगे बात समझ में. एक पहली स्टोरी उसने सुनाई थी जो, है ना. अब नेक्स्ट स्टोरी सुनते हैं उससे. वो कह रहे हैं सॉरी, बट इफ ही हैड गॉन 1 hour kilometer, sorry, if he had gone 1 kilometer per hour slower, he would have taken 3 hours more. If he had gone 1 kilometer per hour slower, 1 kilometer per hour slower, he would have taken 3 hours more. Find the distance traveled by him, find the speed with which he was traveling, find the time taken by him, something like that. चलो कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन, है ना. सिंपल सी बात क्या करें, देखिए ना, मैंने आपको इसी कैटेगरी में यही तो क्वेश्चन बताया कि आपको क्या करना है. अगर वो स्पीड बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली टाइम कम लेगा, अगर स्पीड कम कर रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा. एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, यानी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर गोइंग फ्रॉम साइमल्टेनियसली. तो डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट जो है वो दैट विल रिमेन सेम. x into y will remain the same. And what is x and what is y, वो हमें अब सोचना पड़ेगा. चलो आराम से सोचते हैं. It says a person travels certain distance with certain speed. Let his speed be x and the usual time with which he travels or covers that distance, let it be y. मान लेते हैं वो x स्पीड से y टाइम लेते हुए उसको कवर करता है डिस्टेंस को, है ना. तो आप देखें उसके वॉकिंग में व्हाट विल रिमेन द सेम, द डिस्टेंस विल रिमेन द सेम. डिस्टेंस वही है, स्पीड बढ़ाता है टाइम कम लेता है, स्पीड कम करता है टाइम ज्यादा लगता है.
क्या what remains the same? The distance remains the same. वो walking उतनी करता है, right? चलो अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं. If the speed of the person, if he increases his speed by half a kilometer per hour faster, so x plus 1 by 2 is his new speed. His new speed, x plus 1 by 2. What is x? His usual speed. No? Into time. He takes 1 hour less. He takes 1 hour less. So usual time is y. So he will take 1 hour less. In a journey of xy only. In a journey of xy only. What is xy? X is the speed, t is the time, so x into y is the distance covered. वो तो वही रहेगा. देखिए ना, अगर ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है. एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन तो मिला ना आपको. If the length is increased by half meter and the breadth is decreased by 1 meter, the area remains same. अगर आपको रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया वाला या रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्वेश्चन मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में नहीं मिलता, तो क्या फर्क पड़ता है. इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि क्वेश्चंस के पीछे मत दौड़ो, दौड़ो कंसेप्ट के पीछे कि फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है. कंसेप्ट ये है कि अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो उसका टाइम कम लगेगा. इसका मतलब एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. In any case, I am talking about 10th class, okay? In any case, if the appreciation and depreciation are going on simultaneously, do one thing, take out the product, that's all. उनका प्रोडक्ट निकाल लो बस. तो आप सोचें जरा, अगर एक चीज स्पीड है, दूसरा टाइम ले रहा है, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस ही तो आएगा. अब ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में ना पूछ करके एनसीईआरटी में इस फॉर्म में एग्जांपल दिया हुआ है कि the length of a rectangular park is increased by half meter and the breadth is decreased by 1 meter, the area remains unchanged. तो वही तो क्वेश्चन है ये भी, राइट. चलो ब्रैकेट खोलते हैं. तो सॉरी, मैंने इधर x माइनस वाई लिखा हुआ है. सॉरी ये y माइनस 1 है, y टाइम था ना, सॉरी. तो y माइनस 1, x प्लस 1 बाय 2, स्पीड 1 बाय 2 हाफ इंक्रीज हुई है, लेकिन टाइम रिड्यूस हुआ है बाय 1 आवर. तो इधर y आना चाहिए था, मैंने x लिखा था गलती से. ठीक है, चलिए x y माइनस x प्लस y अपॉन 2 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल कर देते हैं. इसमें 2 का इससे ले लूं तो इट विल बी माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन. एक्स और वाई का एक रिलेशन आ गया अपने पास में. ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं. अब एक और कहानी सुनाएगा ना, उसकी कहानी फिर से सुनते हैं. चलो अब उसकी कहानी सुनाई हमें दूसरी. उसने कहा कि इफ ही हैड वॉक 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, स्लोअर, इफ ही हैड वॉक 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर. ठीक है, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि इसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है, राइट. He would have taken 3 hours more. So अब उसको टाइम लगेगा y प्लस 3 और आ जाएगा अपने पास x y, क्योंकि डिस्टेंस तो x y ही रहने वाला है. वही डिस्टेंस कवर कर रहा है. वो कभी स्पीड कम करता है, कभी स्पीड ज्यादा करता है. इस केस में उसने स्पीड कम की, टाइम ज्यादा लगा, डिस्टेंस will remain the same. Again the question is based on appreciation and depreciation. If the length of a rectangular plot is decreased by 1 meter and its breadth is increased by 3 meters, the area remains same. The area remains unchanged. वही क्वेश्चन है ये भी, है ना. So xy plus 3x minus y minus 3 is equals to xy. ये दोनों गए आपके पास में, तो आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, 3x minus y minus 3 is equals to 0. It's a very simple case of linear equation and two variables. इससे प्यारी और इक्वेशंस या सिंपल इक्वेशंस क्या हो सकती हैं जब हमें केवल एक एडिशन की जरूरत हो. x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज 4 किलोमीटर पर आवर. x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. If x is 4, that means what is x? The usual speed. So with usually वो अब जब वॉक करता है तो उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होती है ना. अब y निकाल लेते हैं. अगर उसने टाइम पूछा होगा तो टाइम भी निकालना पड़ेगा.
किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए। चलिए, तो ये y आ जाएगा 9। बहुत छोटी सी बात है, मैं क्या करके दिखाऊं इसमें कैलकुलेशन, है ना। तो y आ जाएगा आपके पास में 9 आवर्स। सो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी यूजुअल, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, उसे कवर करता है। अगर उसने टोटल डिस्टेंस पूछा, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्स, तो 4936 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है। मैं यहाँ पे यूनिट गलत लगा रहा हूँ, विच इज वाई विच इज आर। अब ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, 9 आवर्स उसने यूजुअली वो लेता था, और 4 9 36 स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस। तो 36 किलोमीटर वो रोज या जो भी है वो वॉक करता है। ये सुनो, सिंपल। अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन व्हेन कम्स टुगेदर, जब दोनों एक साथ चलते हैं तो आपने करना यही है, एक को इंक्रीज कीजिए, एक को डिक्रीज कीजिए, जैसा भी वो करे, और प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। और या फिर लेंथ या ब्रेथ जो भी है, एरिया में कोई चेंज है तो एरिया में चेंज कर दीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और रो और कॉलम का क्वेश्चन दिया हुआ है, that some students in a class are made to stand in rows and all, वो भी यही है। रोज कम करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कम करेंगे तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी। वही है, इट विल रिमेन, द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन द सेम। ओके, राइट। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी, है। एक और बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट है, इसके में एनसीईआरटी ऑल्सो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी उसके भी, उनकी भी बात करते हैं। और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा बात को पहले। सपोज 2 motorcyclists start simultaneously from 2 different places A and B on a straight highway. 2 motorcyclists are starting from 2 places on a highway A and B, suppose 100 kilometers apart. A and B are 100 kilometers apart. If the motorcyclist which is starting from A and the motorcyclist which is starting from B are coming towards each other, they meet in an hour. They meet in an hour. वो 1 घंटे में ही मिल जाते हैं फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही वाली बात जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में समझी थी ना, उसी चीज को समझिएगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मोटरसाइकिलिस्ट आ रहा है, दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, एंड टुगेदर बोथ ऑफ देम आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये मत बोलना कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन तो ऐसे भी होती है, तो दे विल मीट इन 1 आवर। भाई वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो दुनिया गोल है, समझ में आता है, वापस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, नो। If one of them is moving towards the western direction, the other one is moving towards the eastern direction. Okay, so opposite direction का मतलब towards each other है यहाँ से, right? 2 motorcyclists are starting simultaneously from 2 different places and they are moving towards each other. They are moving towards each other. Got my point? So if they are moving towards each other, what will be the distance covered by what will be their relative speed? क्योंकि अब स्पीड नहीं होगी। देखिए ना, अगर ये नहीं चल रहा होता तो हम कहते हैं ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जैसे हमने मोशन लास्ट ईयर करा था चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। तो अगर एक्स ही चल रहा होता तो हम कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वाई चल रहा होता तो कहते हैं हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। लेकिन अगर दोनों चल रहे हैं तो आफ्टर एन आवर he will cover 40 kilometers and this person will travel 60 kilometers. So their relative speed will be 100 kilometer per hour, isn't it? सोचिए ना जरा, अगर आप 1 घंटे के बाद की बात करें तो 40 किलोमीटर तो ये कर लेगा, ट्रेवल करेगा, 60 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका होगा, 40 इसने कवर किया, 60 इसने किया, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? 100 किलोमीटर इन एन आवर। तो जब दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, so relative speed is x plus y. Speed is equal to distance upon time. As the question says, I was saying that when they are 100 kilometers apart and they move towards each other, or he may say in the opposite direction. Again, in the opposite direction does not mean that they are moving like that, but they are moving towards each other. One is moving towards the eastern direction, the other one is moving towards the western direction. Towards each other, they meet in an hour. That means x plus y is equal to 100 upon 1. Because speed is what? Distance upon time.
speed is simple, distance upon time. So first equation is x plus y equals to 100. First one. Let's talk about the second one. He says if they are moving in the same direction, suppose A and B are moving in the same direction, x and y. Suppose x is chasing y. If y is traveling with a speed of 30 km per hour and x is moving with the speed of 40 km per hour, what will be their relative speed? Now the concept is of relative speed. No, this is not a concept of speed only. X चलेगा 40 km per hour की स्पीड से, y देख के इंतजार होना करे कि अच्छा तो आजा फिर मैं चलता हूँ, नहीं. Simultaneously they are moving, so their speed is 10 km per hour only. Why? Try to understand this thing. The other one person is not waiting here. He is also moving. So 40 इसने cover किया, लेकिन उसने क्या किया, वो 30 किलोमीटर आगे चला गया. So in an hour, what will be the speed? Their speed will be 10 km per hour. Only 10 km per hour. Okay. So the question will say like this, maybe like this. It may say that if they move in the same direction, they meet in 5 hours. So x minus y is their relative speed when they are moving in the same direction, and they meet in 5 hours. That means 100 upon 5, because distance is 100 kilometers. They are 100 kilometers apart, and they meet after 5 hours. So what is speed? Speed is distance upon time. So ये हो गया आपके पास में x plus y equals to 100 और x minus y equals to 20 का सिंपल सिस्टम. इससे प्यारी नन्ही मुन्नी प्यारी इक्वेशन नहीं हो सकती कोई भी. क्या करना है, एक एडिशन ही तो करना है. ये लो एडिशन किया, 2x is equals to 120, x is equals to 60. So the speed of the first motorcyclist is 60 km per hour, and the speed of other motorcyclists is 40 km per hour. Together their speed is 100. So if one of them is moving with 60 km per hour, with a speed of 60 km per hour, the other one is moving with a speed of 40 km per hour. Is it clear? दोबारा समझाऊं, एक बार फिर दोबारा. चलो, उसने कहा अपने से कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं. अगर हम सिर्फ की टर्म्स में बात करें तो चलो, दो पार्टिकल्स हैं, both independent body, and they are moving towards each other. One particle or one body, suppose A and B are the two bodies, and they are moving towards each other with the speed of x km per hour and y km per hour. अगर ये x किलोमीटर कवर करेगा एक घंटे में, तो ये खुद खड़ा होना है, वो तो उसी टाइम वो वहां से भी रवाना हो चुका है. जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, when they will move towards each other, their relative speed will be x plus y. This will be what? The speed, because both the particles are moving, right? Suppose one of them is chasing the other one, x and y are moving in the same direction. When x will cover some distance, y will not stay over there, वो भी आगे चलेगा, भागेगा. तो अब की बार इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस y हो जाएगी. तो रिलेटिव स्पीड का एक छोटा सा कंसेप्ट है ना. सो अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो x प्लस y होता है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सॉरी दोबारा से बोलता हूँ, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो x माइनस y होता है, लेकिन जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो x प्लस y होता है. आप इमेजिन कीजिए ना, आपका दोस्त आपके घर की तरफ आ रहा हो, मान लीजिए आप भी निकले घर से और वो भी अपने घर से निकला, तो दोनों बहुत जल्दी मिल जाओगे. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ते में मिलोगे. आप भी चल रहे थे और वो भी चल रहा था, लेकिन आपने उसको उसका पीछा करना शुरू किया. मान लीजिए आप उस डायरेक्शन में चले थे, आपका दोस्त भी उसी डायरेक्शन में चले जा रहा था, तो आपको मिलने में और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड आपकी रिड्यूस होगी. आप अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, नहीं बिल्कुल नहीं, डेंजरस फॉर यू, चलो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना एक्टिवा चला रहे थे, आपका फ्रेंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी बाइक चला था, या जिस पे भी जा रहा है वो चला रहा था, तो आपकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की तो है ही नहीं, क्योंकि द अदर पर्सन इज नॉट वेटिंग. जो आपका फ्रेंड है वो वेट नहीं कर रहा. तो 70 माइनस 60 इस केस में केवल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रह जाएगी. लेकिन अगर आप इस स्पीड से चलेंगे, 70 की तरफ से किलोमीटर पर आवर की तरफ से आप इस तरफ जा रहे हो, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास आ रहा है, तो आप 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं. सोचिए ना, बहुत जल्दी मिल जाएंगे आप जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो. लेकिन when you will move in the same direction, it will be minus. We can say it's a concept of relative speed. It's not speed but relative speed, है ना.
डिपेंड करता है कि सामने वाले की स्पीड भी क्या है, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की तरह तो है, लेकिन वो नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है, बोट उसी का सिस्टम होती है, बोट पानी का या स्ट्रीम के अंदर होती है तो इससे क्या सिस्टम होती है। ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इसको समझिएगा। ठीक है, फिर देयर वाज अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन दैट टू फ्रेंड्स आर हैव देयर इनकम in the ratio 9:7. Two friends are having their income in the ratio 9:7, and their expenditure is in the ratio of 4:3. 4:3 is the ratio of their expenditure. By the end of the month, if both of them save 2,000 rupees each, means by the end of the month, if they save rupees 2,000 each, find their income. So the very first thing we should know is that what are the variables. Let the income of the two person be x and the expenditure will be y. So the income of the first person will be 9x and the income of the other person will be 7x. The income of the first person, first friend, let it be 9x, and the income of the other person, the second friend, let it be 7x. Okay. The expenditure is in the ratio of 4:3. So the expenditure of the first person, let it be 4y, and the expenditure of the second friend, let it be 3y. By the end of the month, if they save rupees 2,000 each, so we know that income minus expenditure is savings. Income minus expenditure is equals to savings. We can reduce this equation, we can solve this equation, and we can find out their incomes also. Isn't it? If two friends make their income, the income of two friends is in the ratio of 9:7, and their expenditure is in the ratio of 4:3, then it's very simple that if the income of first person is 9x, the income of second person should be 7x. The expenditure of the first person is 4y, then the expenditure of the second person should be 3y, and income minus expenditure is equal to savings है, तो अपने पास हो गया है ना। इसके अलावा छोटी मोटी क्वेश्चंस या छोटे मोटे इक्वेशंस मिलेंगी आपको which are related to geometry, और वो भी बहुत इजी सी होती हैं। यू कैन ट्राई देम योरसेल्फ, आराम से करिएगा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक सुहाना सफर है, बिल्कुल ये चैप्टर एक सच में सुहाने सफर की तरह है, बहुत प्यारा चैप्टर है। एटलीस्ट इन कंपेरिजन टू द 9th क्लास, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर, उसके मुकाबले में तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, राइट। तो इसे सॉल्व करिएगा। मैंने आपको बताया, आपने एनसीईआरटी, टुमारो इज संडे, एनसीईआरटी, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक and go through each and every solved and unsolved question. आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जो आपको लगे कि यार ये तो डिस्कस कर लेना चाहिए, या पता नहीं इस टाइप का क्वेश्चन हमें कराया गया है या नहीं, या डिस्कस हुआ है क्लास में या नहीं, या किसी में भी प्रॉब्लम हो, तो आप में से जरूर पूछिएगा। ओके।